Hello students, we will continue in the next part of the rat trap. So the rat trap seller or the peddler has accepted the invitation of Adela Williamson and he has gone to her house. So while he was going, he was also thinking that I'm sitting in the rat trap and I will never get out of it. And why I had taken the money of that fellow or the crofter, because he had stolen 30 kroner from the crofter. So he was thinking that I'm now in the rat trap and I will never come out of this rat trap. So he had gone to Adela Williamson's invitation and he had gone there. The next day was Christmas Eve, as it was already discussed that the next day Christmas festival was there. And when the ironmaster came into dining room, so at night no one met him and he slept there. So in the morning when ironmaster came into dining room for the breakfast, what he did, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. So at first as he came into the dining room, he thought about his friend, his regimental or his regiment's, his group's comrade or companion. तो जैसे ही वो डाइनिंग रूम में आया, उसने आते ही सबसे पहले अपने साथी के बारे में सोचा that actually his daughter Adela Williamson, she had come with him at night. So how he would like, how he is right now. So whom he had run across so unexpectedly, and also he had met him विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस. उसको ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो अपनी मील के अंदर जाएगा, क्योंकि वो रोजाना नाइट के इंस्पेक्शन के लिए जाता था. एंड ऑन दैट डे ही फाउंड द पेडलर. सो देयर वाज नो एक्सपेक्टेशन, किसी प्रकार की कोई आशा नहीं थी उसको, फिर भी वो उससे मिल गया. तो अब वो उसी के बारे में, जैसे ही मॉर्निंग के अंदर डाइनिंग रूम में ब्रेकफास्ट के लिए आता है, वो उसी के बारे में सोचता है. सो नाउ ही इज़ टॉकिंग विद हिज डॉटर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी दैट टू इट दैट he gets a little flesh on his bone, because he had seen that what the condition of the person. He has sunken cheek. It means he was physically weak. बिल्कुल वो कमज़ोर हो गया है शरीर से. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज़ थिंकिंग दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, कि सबसे पहले थोड़ी सी बोन्स के ऊपर थोड़ा सा फ्लैश आ जाए, मास आ जाए. इट मीन्स ही शुड बी हेल्दी. ही सेड टू हिज डॉटर हु वॉज बिजी एट द टेबल. एक्चुअली शी वॉज बिजी एट द टेबल बिकॉज शी वॉज प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट and she was just serving breakfast on the table. And then we must see that he gets something else to do than to run around in the country selling rat traps. Next he also said to his daughter that next we must see that he should leave this selling of rat traps, and instead of that or then doing this job, he should do any other job. It means they are also going to some अदर बिजनेस फॉर हिम, टू पुट अदर बिजनेस फॉर हिम. तो आयरन मास्टर ने अपनी बेटी को ये भी समझाया कि हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले थोड़ा सा वो हेल्दी हो जाए और उसके बाद ये रेड ट्रैप सेलिंग का काम छोड़कर कोई और दूसरा काम करे. नेक्स्ट, इट इज़ क्लियर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद हिम एज बैडली एज दैट सेड द डॉटर. डॉटर ऑल्सो इन्वॉल्व हर सेल्फ इन द कन्वर्सेशन. सो सी टोल्ड दैट इट इज़ क्लियर मीन्स स्ट्रेंथ, दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद हिम एज बैडली एज दैट, कि उसके साथ चीज़ें इतनी ज़्यादा बुरी होगी दैट ही हैड टू सेल. ही इज सेलिंग द रेड ट्रैप्स. लड़की ने जवाब दिया कि इतनी चीज़ें उसके साथ रेसमें हो गई, एकदम से स्ट्रेंथ चीज़ें हो गई कि अब वो रेड ट्रैप सेल कर रहा है. कभी एक कैप्टन था. लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन. कि लास्ट नाइट मेरे को ऐसा लगा ही नहीं था दैट वंस ही वॉज एन एजुकेटेड मैन. He was so frightened. Actually, she had observed that either he had stolen something or he had escaped from the jail. या तो उसने चोरी की है या वो भागा हुआ है जेल से, इस प्रकार की उसने ऑब्जर्वेशन की थी. एंड नेवर ही लुक्ड लाइक एन एजुकेटेड मैन. दैट्स वाई शी इज ऑल्सो सेइंग टू हर फादर दैट लास्ट नाइट आई डिडंट notice about him that once he was an educated man. What's the reaction of his father? He is saying, her father, you must have patience girl, my little girl. He is saying be patient, कि धैर्य रखिए my little girl, said the father as soon as he gets clean and dressed up. कि जैसे ही वो clean होगा, he was so dirty and also having only rags.
So as he would be dressed in a proper way and also be cleaned, you will see something different. Then you will see that he is an educated person. कि जब वो बिल्कुल साफ हो जाएगा, अच्छी ड्रेस पहनेगा एक कैप्टन की तरह से, तब आपको लगेगा कि हाँ ही इज़ अ कैप्टन, ही इज़ एन एजुकेटेड पर्सन. लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली इम्प्रेस्ड, कि लास्ट नाइट तो नेचुरली इम्प्रेस हो गया था. दैट वाज आल्सो ऑब्जर्व बाय द आयरन मास्टर. आयरन मास्टर यही समझ रहा था कि वो इम्प्रेस है, क्योंकि वो रैग्स के अंदर है, वो उसके घर जाएगा तो पता नहीं क्या होगा. सो ही ऑल्सो सेड दैट टू हिज डॉटर दैट लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली इम्प्रेस्ड. ही वॉज थिंकिंग दैट ही इज इन रैग्स, दैट ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम with the tramp clothes, and when he will wear the new dress and he will remove the tramp clothes, he will definitely also remove his tramp manners. Tramp manners भी उसके साथ चले जाएंगे जैसे ही वो tramp clothes को हटा देगा. मतलब जो कपड़े हैं उनको जैसे ही वो हटाएगा, नए कपड़े पहनेगा, साथ साथ वो अच्छा लगेगा आपको एक एजुकेटेड की तरह से. Just as he said, this door opened and the stranger entered. As he was saying the same, at the same time the stranger entered now. So yes, he was now was truly clean and well dressed, and now he was also truly cleaned and was all well dressed. कि अब अच्छे से उसको साफ भी कर दिया गया था, अच्छी ड्रेस पहने हुए था. एंड ही एंटर्ड इनटू द डाइनिंग रूम. द वैलेट हैड बाथ हिम, उनका जो सर्वेंट था, वैलेट था, उसने उसको बात करवाया, नहलाया. कट हिज हेयर, उसके बाल भी काट दिए. एंड सेव्ड हिम, और उसकी सेव भी बना दी. Moreover, he was dressed in a good-looking suit of clothes which belonged to the Iron Master, and with that, he was also having a dress of a good-looking suit or clothes which actually belonged to Iron Master. Iron Master के कपड़े वो उस टाइम पे पहने हुए था. He wore a white shirt and a starched collar and all shoes. So he was also wearing a white shirt, also a starched collar, and also हॉल शूज़, और पूरे जूते पहने हुए हैं, स्टार्च की हुई, बिल्कुल कड़कदार प्रेस की हुई, अच्छे से कॉलर भी पहने हुए हैं, शूज़ भी पहने. इट मीन्स ही वॉज जस्ट लुकिंग लाइक अ कैप्टन एट दैट टाइम. बट वट हैपन रियल, बिकॉज आयरन मास्टर हैड ऑलरेडी डन अ मिस्टेक to recognize him, and that's why now, but although his guest was now so well groomed or decorated, the Iron Master did not seem pleased. कि आयरन मास्टर है वो प्लीज नहीं दिखाई रहा था, खुश दिखाई नहीं दे रहा था. हालांकि उसका जो गेस्ट है ही वॉज वेल ग्रूम्ड और डेकोरेटेड, बिल्कुल सुसज्जित था, अच्छे से कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी आयरन मास्टर खुश नहीं था. वाई ही वॉज नॉट हैप्पी, बिकॉज एक्चुअली व्हेन ही सार नाउ इन द डे लाइट he couldn't make such a mistake that he had done the last night. पिछली रात उससे गलती हो गई थी, डिम लाइट थी वहाँ पर, और अब वो उसको साफ देख सकता था कि ये तो वो आदमी नहीं है. he had done a mistake. He looked at him with puckered brow, and right now he also having a puckered brow in an anger. आंखें चढ़ा करके एकदम से गुस्से से देखा कि ये तो वो आदमी नहीं है. And it was easy to understand that he, when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake, and now he could understand very well. अब उसको बिल्कुल समझ में आ रहा था कि एक्चुअली जब उसने उस स्ट्रेंज फेलो को अनसर्टन रिफ्लेक्शन ऑफ फर्नेस, भट्टी की उस लाइट के अंदर, जो कि निश्चित लाइट नहीं थी, डिम लाइट थी, उसमें देखा ही माइट हैव मेड ए मिस्टेक, उसने गलती कर दी थी. बट दैट नाउ व्हेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट, लेकिन अब क्योंकि वो ब्रॉड डे लाइट के अंदर था, बिल्कुल दिन के उजाले के अंदर खड़ा था, इट वॉज इम्पॉसिबल टू हिम टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस. एक अपने पुराने परिचित को, एक्वेंटेंस को, नॉन पर्सन को अब पहचानने में उसके लिए इम्पॉसिबल बात थी. डे लाइट के अंदर तो बिल्कुल पहचान जाएगा दैट ही इज़ नॉट कैप्टन निल्सोल्फ. एंड बिकॉज नाउ ही हैड रिकॉग्नाइज्ड हिम एज ओनली ए पेडलर, एंड नाउ ही बिकेम एंग्री. एकदम से गुस्सा आया उसको कि इट मीन्स व्हेन ही सेड हिम निल्स कैप्टन, बट हाउ डू यू लाइक इट. एंड एट दैट एक्चुअली पेडलर हैड ओनली सेड दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल फॉर मी, कि चीज़ें मेरे साथ इतनी बुरी हो गई इसलिए मेरे साथ, बिकॉज ही ओनली वांटेड अ कपल ऑफ कॉर्नर फ्रॉम द आयरन मास्टर दैट टाइम. बट नाउ व्हेन आयरन मास्टर हैड रिकॉग्नाइज्ड हिम, व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ आयरन मास्टर? ही इज सेइंग व्हाट डज दिस मीन, व्हाट डज दिस मीन. ही थंडर्ड, एकदम से गरज के उसने कहा कि व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है? यू आर नॉट अ कैप्टन, यू आर ओनली ए पेडलर. द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिस्यूमुलेट. और स्ट्रेंजर ने कोई अटेम्प्ट नहीं किया किसी प्रकार से डिस्यूमुलेट करने का, हाइड करने का, छुपाने का. ही डिडंट शो एनी अटेम्प्ट,
कोई प्रयास ही नहीं किया कि मैं अपनी बात को छुपाऊँ, क्योंकि उसको पता था कि जो लॉयंस केव के अंदर जा रहा है, शेर की गुफा में जा रहा है और एक प्रकार से ट्रैप पे बैठा हुआ है, तो असली तो पता आ गया नहीं है। ही सा एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड, एंड एट वंस उसी टाइम पे उसको लगा कि द स्प्लेंडर और द मैग्निफिकेंस दैट ही वॉज हैविंग एज ए कैप्टन दैट हैज़ कम टू एन एंड, कि जो शानो शौकत थी वो एकदम से एंड हो गई है। नाउ ही इज व्हाट इज हिज रिएक्शन, व्हाट इज हिज आंसर, ही इज सेइंग और ही इज मेकिंग एन एक्सक्यूज, इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर। ये उसका आंसर देने का तरीका कि सर मेरी गलती नहीं थी, ये मेरी गलती नहीं है। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर, कि मैंने तो कभी ऐसा कोई प्रिटेंड नहीं किया, एक्सक्यूज़ नहीं किया कि मैं कुछ और हूँ। मैंने तो यही बताया था कि I'm a पुअर ट्रेडर, कि मैं एक छोटा सा व्यापारी हूँ जो क्या रेड ट्रैप सेल करता हूँ। एंड आई प्लीडेड एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फॉर्म, कि मैंने प्लीड किया था, रिक्वेस्ट किया था, बेग किया था, भीख मांगी थी कि मुझे केवल फॉर्म के अंदर, उस मिल के अंदर ही वहाँ पर रहने दिया जाए, टू स्टे एट नाइट, बट नो हार्म हैज़ बीन डन। कहता है कि लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ है। इफ़ यू आर थिंकिंग दैट देर इज सम हार्म इज डन, नो, एट वोस्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे, कि इससे वोस्ट क्या होगा, इससे बुरा क्या होगा कि दोबारा वही कपड़े पहनूंगा, अपने रैग्स पहनूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा, दैट्स ऑल। वेल सेड द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर ने कहा कि अच्छा, हेजिटेटिंग ए लिटिल, थोड़ा सा हेजिटेट करता हुआ, इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट इधर, कि ये भी कोई ईमानदारी नहीं है। वैन आई वॉज एड्रेसिंग यू एज कैप्टन नील सॉल्व, I was inviting you at my home. You never said that I'm not a captain. I'm not Neil Solve. You must admit that. आपको ये मानना होगा कि ये भी ऑनेस्टी नहीं है, ईमानदारी आपने नहीं की. And I should not be surprised if the sheriff would like to have something to say in the matter. And he also warned him that I should not be surprised. मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं होगी कि if the sheriff would like to have something to say, कि शेरिफ को कुछ कहना भी पड़ेगा इस मैटर के अंदर। शेरिफ इज़ द पुलिस कांस्टेबल और पुलिस ऑफिसर दैट ही वुड कम, कि अगर मैं पुलिस को बुलाता हूँ तो उसको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज इफ़ आई हैड एड्रेस्ड यू एज ए कैप्टन एंड यू आर नॉट अ कैप्टन, देन इट ओनली मीन्स इट इज़ योर फॉल्ट। नाउ द ट्रैम्प टुक ए स्टेप फॉरवर्ड। ट्रैम्प को ये बात, इसका रिएक्शन ट्रैम्प कैसे देता है? He reacted, he took a step forward and struck the table with his fist. एकदम से आगे बढ़ता है और टेबल के ऊपर अपनी फिस्ट, अपनी मुट्ठी जमाता है, अपने एकदम से गुस्से के अंदर आकर के अपनी मुट्ठी है वो स्टक करता है कहाँ पर? टेबल के ऊपर। जैसे उसको गुस्सा आया कि आई वॉन्ट टू टेल समथिंग, एंड ही इज सेइंग नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर। आयरन कहता है कि आयरन मास्टर मैं बताता हूँ कि आपको क्या हुआ, हाउ थिंग्स आर, कि चीज़ें होती कैसे। He said this whole world is nothing but a big rat trap, because he had already this idea about the world as a rat trap, and that's why he is explaining now in front of the Iron Master. He is saying, he is making an excuse by saying this whole world is nothing but a big rat trap. कहता है कि ये पूरा वर्ल्ड ही रेड ट्रैप है। अभी आप ये सोच रहे हो कि मैं इस रेड ट्रैप के अंदर फंस गया, मैं लालच के अंदर यहाँ पर आ गया, तो मैं अकेला नहीं हूँ, ये पूरा वर्ल्ड ही रेड ट्रैप है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर टू यू आर नथिंग बट चीज़, रिंस एंड बिट्स ऑफ बॉक्स, कि जो भी चीज़ें आपको ऑफर की जाती हैं वो सारी चीज़ रिंस हैं, चीज़ के रिंस हैं, आप कह सकते हैं पीसीज हैं या छल्ले हैं, एंड बिट्स ऑफ बॉक्स या फिर पॉक जो मीट है उसके पीस होते हैं। सेट आउट टू ड्रैग ए पुअर फेलो, और उनको सेट किया जाता है एक पुअर फेलो को अट्रैक्ट करने के लिए, ड्रैग करने के लिए, पुल करने के लिए, खींचने के लिए। जैसे रेड ट्रैप के अंदर अगर मान लीजिए चीज़ की जो छल्ले हैं, चीज़ के जो पीस हैं, पनीर के टुकड़े हैं या मीट के टुकड़े हैं, उनको रखा जाता है ताकि जो रेट है वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होकर के आए और वो उसके अंदर फंस जाए। कहता है कि जो पूरा वर्ल्ड है वो भी उसी प्रकार से, गुड थिंग्स आर ओनली ऑफर्ड टू समवन टू अट्रैक्ट टुवर्ड्स इट इनटू ट्रबल, ताकि उन फेलोज को ट्रबल में डाल दिया जाए। And that's why it only means that I have been also trapped into this rat trap of the world, कि मैं भी एक लालचवश यहाँ पर आ गया हूँ, मुझे भी ग्रीड थी, and that's why I have come here. And if the sheriff comes now, कहता है कि अगर वो शेरिफ, वो पुलिस कांस्टेबल, पुलिस ऑफिसर यहाँ पर आता है and locks me up for this, केवल इस पर्पज़ के लिए अगर वो मेरे को लॉकअप में डाल देता है, because I was also tempted towards some गुड फूड, कि मुझे कुछ अच्छा भोजन मिलेगा, अच्छी चीज़ें मिलेंगी, इसीलिए मैं यहाँ पर अट्रैक्ट होकर के आ गया, मैं टेम्पटेशन के अंदर आ गया। देन यू मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर दैट ए डे मे कम
when you yourself may want to get a big piece of pork and then you will get caught into the trap। अब वो उसको कहता है कि आयरन मास्टर आप भी एक बात याद रखना मेरी, कि एक दिन ऐसा भी आएगा you yourself may want to get a big piece of pork, कि आप भी एक बड़े से pork मीट के पीस की तरफ क्या है अट्रैक्ट हो जाएंगे, आप भी उसको चाहेंगे, then you will get caught in that trap, आप भी कभी ट्रैप में फंस जाएंगे। If you are thinking, because this whole world is like a rat trap। The Iron Master began to laugh. Iron Master actually began to laugh by his wittiness, how witty he was, कितना हाजिर जवाबी है, किस प्रकार से इसने रिएक्शन दिया, किस प्रकार के आइडियाज इसके पास हैं। He also became happy by that idea and he said that was not so badly said, कि आपने इतनी बुरी बात भी नहीं कही, आपने भी बात तो सही कही है, आपने भी लालचवश आप लोग यहाँ आ गए, माय गुड फेलो, कि मेरे साथी तुम भी क्या है लालच से यहाँ आए हो। Perhaps we should let the sheriff alone on Christmas Eve। चलो ठीक है, क्रिसमस का त्यौहार है इसीलिए हम उस शरीफ को आज रहने देते हैं, त्यौहार के दिन क्यों पुलिस वाले को बुलाया। बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन, लेकिन जितनी जल्दी हो उसके यहाँ से चले जाओ। यू मस्ट गो फ्रॉम हियर एज फास्ट एज यू कैन। बट जस्ट द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, लेकिन जैसे ही आदमी डोर खोलने वाला था, द डॉटर सेड आई थिंक ही आउट टू स्टे विद अस टुडे। लड़की ने कहा कि नहीं, मैं ये सोचती हूँ कि इसको आज यहाँ पर रुकना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो एंड विद दैट सी वेंट एंड क्लोज द डोर। कहती कि मैं नहीं चाहती कि आज ये यहाँ से जाए, एंड विद दैट सी गो अहेड एंड क्लोज द डोर। आगे बढ़ी और डोर को बंद कर दिया। व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ द आयरन मास्टर एट दैट? व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, सेड द फादर। फादर ने कहा कि इस वर्ल्ड में तुम ये कर क्या रही हो? व्हाई, व्हाट हैपेंड टू यू? द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट इम्प्रेस्ड एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर। डॉटर है वो वहीं पर क्वाइट इम्प्रेस्ड होकर के, लज्जित होकर के थोड़ी सी खड़ी हो गई, शर्मा के, एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर। उसको ये भी नहीं पता कि दैट व्हाट ही शुड गिव आंसर, क्या रिप्लाई करे। दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी व्हेन शी थॉट हाउ होम लाइक एंड क्रिसमस शी वाज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रेंच। शी वाज थिंकिंग दैट इन द मॉर्निंग हाउ मच शी वाज हैप्पी, हाउ शी हैड फेल्ट सो हैप्पी, कि वो कितनी खुश थी। वो ये सोच रही थी कि हाउ द थिंग्स शी वॉज गोइंग टू मेक फॉर दिस पुअर एंड हंग्री। कितना गरीब सा है ये, बेचारा सा है, हंग्री है, रिच, बिकॉज नाउ ही इज ऑल्सो डन समथिंग रॉन्ग। सो रिच इज एक्चुअली यूज फॉर द बैड पर्सन्स, दोस्त, विक्ट। सो शी इज थिंकिंग दैट हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी थिंग्स शी वॉज गोइंग टू प्रिपेयर, कि इसके लिए घर की तरह से, एक त्यौहार की तरह से वो कैसे चीज़ें बना रही थी इस आदमी के लिए। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, कि एकदम से अब उसको इस आइडिया से बाहर आना पड़ेगा कि वो कितनी तैयारियां कर रही थी। एंड नाउ ही विल गो फ्रॉम हियर एंड दैट वॉज वाई, सो दैट्स वाई शी हैड इंटरसीडेड द वैगाबॉन्ड, कि उसने इंटरसीड किया था, उसने फेवर किया था, पक्ष लिया था वैगाबॉन्ड का, उस ट्रेन का। That was the reason, because she did not want to get out of the idea that how Christmassy and home-like she was going to make things for that poor person. So she replied at last, I'm thinking of this stranger here. तो अब उसने आंसर दिया, क्या आंसर दिया? That I'm thinking of this person stranger here, कि मैं इस आदमी को यहीं रोकना चाहती हूँ। said the young girl. He walks and walks the whole year long, कि पूरे साल बेचारा घूमता रहता है, एंड देयर इज प्रोबेबली नॉट ए सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री वेयर ही इज़ वेलकम एंड कैन फील एट होम, कि शायद पूरी कंट्री के अंदर, पूरे देश में कोई एक ऐसी जगह नहीं है जिसको अच्छे से वेलकम किया जाता है। वेर एवर ही गो ही इज चेस्ड अवे एंड फील एट होम, जिसको ये अपने घर के जैसा फील कर सके। वेर एवर ही टर्न्स ही इज चेस्ड अवे, जहाँ भी जाता है भगा दिया जाता है। ऑलवेज ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड एंड क्रॉस एग्जामिन्ड, हमेशा इसको डर होता है कि उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, उसके साथ क्रॉस एग्जामिन्ड किया जाएगा, उसके साथ पूछताछ की जाएगी। आई शुड लाइक टू हैव हिम enjoy a day of peace with us here, just one in the whole year. She further added that I only want that he should enjoy at least a day, just one in the whole year, कि पूरे साल में कम से कम एक दिन तो ये enjoy करे। So she reacted to her father's when
her father say that what the wrong you are doing in the world. The ironmaster mumbled something in his beard. He could not bring himself to oppose her. Mumbled something in his beard. It means you are hesitating to say something. So ironmaster also hesitated to say something. It means he couldn't speak. He couldn't go against his daughter. He could not bring himself to oppose her. वो बोल नहीं पाया, हेजिटेट कर रहा था, कुछ बोलना तो चाहता था. He was only murmuring, but she couldn't hear. He couldn't dare to speak something. It was all a mistake, of course. अभी उसने कंटिन्यू और बोला लड़की ने that it was all a mistake, of course. निसंदेह उसकी गलती है कि उसने एक्सेप्ट कर लिया इन्विटेशन एक कैप्टन के रूप में. ही वॉज नॉट ए कैप्टन, बट एनी वे आई डोंट थिंक वी आउट टू चेज अवे अ ह्यूमन बींग whom we have asked to come here and to whom we have promised Christmas here. And these are the important lines, that why Adela Williamson interceded or take favor of the person of the red trap seller, even she came to know the truth of the person. उसकी सच्चाई पता चलने के बावजूद भी उसने उसका पक्ष क्यों लिया? बिकॉज she thought that we should not chase away a human being whom we have asked to come here. कि एक ऐसे आदमी को जिसको खुद हमने इनवाइट किया है उसको हमें अपने घर से नहीं भगाना चाहिए. एंड ऑल्सो टू whom we have promised Christmas here. और एक ऐसे आदमी को जिसको हमने प्रॉमिस किया कि हम आपके साथ क्रिसमस फेस्टिवल है वो चीयर करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे. सो सी मेड दिस टू एक्सक्यूजेज कि हमने खुद इसको प्रॉमिस किया है, हमें इसको नहीं भगाना चाहिए और हमने इसको प्रॉमिस किया है क्रिसमस फेस्टिवल के लिए. And that's why she also want to say that at least he should enjoy a day of peace with them, just one in the whole year. कि साल में कम से कम एक दिन तो वो enjoy करे. So what's the reaction of ironmaster or the father? You do preach worse than a parson. He only could say that you do preach. Preach means to give advice. आप सलाह देते हैं, उपदेश देते हैं. वर्स देन ए पार्सन, कि एक पादरी जिस प्रकार से उपदेश देता है उसको कोई नहीं सुनना चाहता, इसी प्रकार से आपने भी ऐसे ही उपदेश दिए हैं. दैट आई कांट अपोज देम. सेड द ironmaster, आई ओनली होप यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस. ही ओनली सेड दैट मेरे को केवल एक ही होप है, एक ही एक्सपेक्टेशन है, यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस, कि कहीं आपको इसके लिए पछताना ना पड़े, ये देख लेना. द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल. यंग गर्ल ने देखा कि दैट ironmaster हैज गिवन अप, कि शायद वो मान गया है, और इसीलिए यंग गर्ल ने क्या किया, अपने हाथ से उस पेडलर को पकड़ा और उसको टेबल तक लेकर के गई. बिकॉज शी हैड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड द ब्रेकफास्ट टेबल. एंड शी सेड नाउ सिट डाउन एंड इट. शी सेड फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन. जैसे उसने देख लिया कि उसका फादर है, वो मान गया है. एंड दैट्स वाई शी सेड सिट डाउन हियर एंड ईट द ब्रेकफास्ट. The man with the breakfast, with the red traps, did not say a word. जो रेड ट्रैप सेलर था उसने एक वर्ड भी नहीं कहा. ही ओनली सेट डाउन एंड हेल्प हिमसेल्फ टू द फूड. बैठ गया और खाना शुरू कर दिया. टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम. बार बार केवल उसी लड़की की तरफ देख रहा था जिसने उसको इंटरसीड किया था, उसका फेवर किया था. वाई हैड सी डन इट, ये उसने क्यों किया. वट कुड बी द क्रेजी आइडिया, इसके पीछे क्या क्रेजी आइडिया हो सकता था. सो ही वॉज थिंकिंग ओनली अबाउट दैट वाई इट वॉज डन, बिकॉज ही वॉज टोटली इन्फ्लुएंस्ड बाई दिस आइडिया दैट वाई इट हैपन. वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो.